ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਸਿਹਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ, ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਿਗਾਹ, ਨਜ਼ਰ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ, ਨਜ਼ਰ ਪੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ 10-10, 12-12 ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੋਗ ਸਾਨੂੰ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ? ਕੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਐਨਕ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦੀ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਐਨਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਨਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਐਨਕ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਈਏ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਨਿਗਾਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 12-12 ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਫ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਪਰਮ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਐਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟਾਰਟ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਦਈਏ ਆਪਾਂ। जब स्पर्म और ओवम फ्यूज़ करते हैं, जाइगोट बनता है, एंड जैसे ही फ्यूज़ करते हैं एक आवाज़ भी होती है और प्रकाश फैल जाता है। ये अंदर होता है, अंदर होता है, अंदर शरीर, माँ के शरीर के अंदर होता है। यस साइंटिफिकली प्रूवन है। दैट इज़ कॉल्ड स्टार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। लाइफ स्टार्ट्स, लाइफ बिगिंस। जितने लंबे स्पिक्यूल्स होंगे जो प्रकाश का, उतनी लंबी लाइफ। जितने छोटे स्पिक्यूल्स होंगे उतनी छोटी लाइफ। यानी कि जब वो मिलन होगा माँ और पिता के स्पर्म और अंडे का, उसी वक्त ये तय हो जाएगा कि इस बच्चे की, आने वाले बच्चे की, आने वाले प्राणी की उम्र कितनी होने वाली है। उसी समय तय हो जाता है। क्या बात, बहुत बड़ी जानकारी। और अब ऐसी स्थितियां भी आ रही हैं कि मदर और फादर के एनर्जी लेवल्स को ट्रेन किया जा रहा है कि उस एनर्जी लेवल तक पहुँचे तब बच्चा पैदा करने की प्रक्रिया शुरू करें ताकि हम इस युग में भी राम पैदा कर पाएँ। और ये चीज़ें संभव हैं। जैसे पहले सोचा जाता था कि अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में ही सुन लिया था और माँ सो गई थी तो नहीं सुन पाया था। हमें लगता था कि नहीं, ये तो ऐसे ही बातें, कुछ ऐसे ही बातें होंगी। आज तो साइंटिफिकली प्रूवन है। हाँ, ये संभव है, ये संभव है। बच्चा सुनता है। बच्चा जब निकलता है माँ के पेट से, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हम हेल्दी नहीं रह गए हैं, हमें बीमारियों से ग्रसित हो गए हैं। और ये लाइफस्टाइल हम बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। ठीक से देखा जाए तो क्यों 40 साल में जाके आपकी आँखों में चश्मा लग जाता है, चीज़ें आप दूर कर करके देखने लगते हो, आपको नहीं दिखता है? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंग्लिश बोलने से फैक्ट्स चेंज नहीं करते हैं। इंग्लिश में कोई बोलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हो गया है, एंड देन आपको ना एक चश्मा लगेगा, अब वो करेक्ट हो जाएगा। जड़ मूल क्या है उसका? जड़ मूल में जाना पड़ेगा कि क्या है। तो ये जो आईज हैं ये कई चीज़ों से गवर्न्ड होती हैं।
इनको एनर्जी कहाँ से मिलता है? एनर्जी का पूरी दुनिया में एक ही सोर्स है, सूरज, और कोई सोर्स ही नहीं है। इसको सूरज देव बोला जाता है। आप देखिए, जो आपको प्राणदायी हैं उसको देव से भी ऊपर माना गया है। आदि योगी शिव हैं, लेकिन आदि देव कौन है? सूरज। तो सूरज को शिव के भी ऊपर माना गया है, बिकॉज वो प्राणदायी हैं, अगर वैसे देखा जाए तो। उसी तरह जब बच्चा पैदा हुआ, आजकल ना इंस्टेंट मैसेजिंग, इंस्टेंट चिप्स और इंस्टेंट मैगी के ज़माने में हर कुछ इंस्टेंट चाहिए, तो बीमारियां भी इंस्टेंटली मिल जा रही हैं, क्योंकि पेशेंस किसी के पास रह नहीं गया है। उनको लगता है कि अभी ऐसे जादू हो जाएगा। ऐसा कुछ जादू होने नहीं जा रहा है, प्लीज़। इट हैज़ टू बी अ लॉन्ग वे। अब आप छोटी सी बात देखिए, एक और जानवर बता दीजिए जो अपने पीठ के बल सोता हो, दिखाइए मुझे। ऐसा कोई आप एक्सेप्शन टू द रूल नहीं हो सकते हैं हमेशा। हर जानवर या तो पेट के बल सोता है या साइडवेज सोता है। अभी कोरोना के टाइम में आपको पता चला कि पेट के बल सोने से ऑक्सीजन बढ़ता है, इसलिए इंसान अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझने के चक्कर में फंस गया है। उसको आइडिया नहीं। उसके ऊपर से आपने तकिया ले लिया। तकिया लेने से क्या हुआ? एक, आपकी ब्लड सप्लाई जो है वो एंगल्ड हो गई। ये एंगल धीरे धीरे, नदियाँ चलती हैं तो यहाँ पर वो पैदा कर देती हैं और धीरे धीरे वो, इसीलिए ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। आप तकिया क्यों लेते हैं? बड़ी सिंपल सी बात है। अगर पीठ के बल भी सो रहे हैं तो तकिया क्यों लेते हैं? क्योंकि आपकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई सब कुछ कमज़ोर होगी, यहाँ पर रिंकल्स पड़ जाएंगे ये गले में, जिससे एज दिखने लगता है। बेस्ट ये है, आप पेट के बल क्यों नहीं सोते हैं? तकिया की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ब्लड सप्लाई कम नहीं होगा, तो ब्रेन भी बचा रहेगा, आँखों की ज्योति भी बनी रहेगी। दूसरा, अगर ये किसी मामले से ज्योति चली गई है या आपको चश्मा ये पहने बिना दिखता नहीं है, दूर का नहीं दिखता है, सर्दी का नहीं दिखता है, उसका एक बड़ा सरल उपाय है। सुबह उगते हुए सूरज को 15 मिनट देखिए और 15 मिनट शाम को डूबते हुए सूरज को देखिए डायरेक्टली, कहीं कुछ चश्मा ना लगाएं। आप 15 दिन में, मेरा दावा है, आप न्यूज़पेपर पढ़ने लगेंगे बिना चश्मे के। आप पक्का कितनी, अगर किसी की ज़्यादा निगाह खराब हो वो भी हो जाएगा। आप देखिए, बॉडी में सबसे द लार्जेस्ट केप्ट सीक्रेट is this body can heal itself. This is the largest kept secret. और ये सीक्रेट क्यों रखा गया है मुझे तो नहीं पता है। हर कुछ हील कर सकता है, ऐसा कुछ भी बॉडी में नहीं है जो हील नहीं कर सकता। यस, हम अगर कर नहीं पा रहे हैं तो हम अपनी कमियां समझें कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास वो रास्ते नहीं हैं या हमें उन रास्तों का पता नहीं है। हर कुछ हील हो सकता है। तो आंखें तो बड़ी सिंपल हैं हील होनी, किसी भी पावर से आप नॉर्मल में आ सकते हैं। ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो नेग्लेक्टेड हैं। आपने कब देखा था लास्ट टाइम शेर को चश्मा पहनते हुए? जिंदगी जब से जो 150-200 साल पहले चश्मा डिस्कवर हुआ, उसके पहले ह्यूमन काइंड जिंदा नहीं थी क्या? वो कैसे काम चलाते थे अपना? हमें इन बातों पे गौर करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पिछले 150 साल से ही मैनकाइंड यहाँ पर है, मिलियंस ऑफ ईयर्स से है। चाहे हम माने चाहे ना माने, मिलियंस ऑफ ईयर्स से है। तो हमने कुछ 150 साल में ऐसी अपने जीवन शैली में ऐसी दूषित चीज़ें शामिल कर ली हैं जिससे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसको ठीक कर लें तो ठीक हो जाएगा। सिंपल सी बात यह है कि सूरज को आप डायरेक्टली आइए देखें,
वो सूरज की किरण बहुत कुछ हील कर देती है, दिमाग के और आँख के दोनों के अंधकार को मिटा देती है यही किरणें। सबसे बड़ी बात, बॉडी के अंदर जो है विटामिन डी की जो कमी होती है वो भी पूरी हो जाती है। आप देखें, उससे चौतरफा इफेक्ट पड़ता है, सूरज में जाने से चौतरफा इफेक्ट पड़ता है। उसके डिटेल में हर चीज़ के डिटेल में साइंटिफिकली जाया जा सकता है, और हर चीज़ मैं साइंटिफिकली प्रूव करके बता सकता हूँ कि कैसे है, लेकिन हमारे ख्याल से वो विषयांतर होने वाली बात होगी। जनरली ये देखा गया है कि अगर आप ठीक ठीक वैसे ही करते रहेंगे तो चीज़ें ठीक होती रहेंगी। तो ये बहुत सिंपल है, और बहुत सिंपली ये किया जा सकता है। कोई भी चश्मा उतर सकता है अगर आपने 15 दिन 20 दिन ऐसे कर लिया तो। आप करके देख लीजिए। मैं जरूर करके देखूंगा, क्योंकि मैं भी चश्मा उतारना। मतलब ये है कि इसमें कोई हर्ज तो नहीं है, नुकसान भी नहीं है, और आप सूरज में जा रहे हैं, इससे अच्छी बात भी कोई नहीं हो सकती है। तो आप करके ही देख लें। डॉक्टर साहब, आपने एक बात बताया कि सूर्य को ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਚਸ਼ਮਾ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ ਅੰਦਰ ਨਿਗਾਹ ਦੇਖਿਆ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਵੱਧ ਗਈ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले सूरज के रेज जैसे ही पड़ेंगे आपके मसल्स को टाइटन करेंगे। मसल्स के लैक्स होने से लेंस भी लैक्स हो जाता है, इसीलिए आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है। ਮਸਲ ਢਿੱਲੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਂਸ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਹੋਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो मसल्स को टाइट करेंगे। दूसरा ये है कि बहुत जल्दी अगर आप एनर्जी डायरेक्टली ये ले रहे हैं, बहुत जल्दी सर्कुलेशन बढ़ेगा, वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ेगी। कई टॉक्सिन्स जो आपको ब्लाइंड करने के चक्कर में हैं या धीरे धीरे डीजेनरेटिव चेंजेस में लेके जा रहे हैं, वो धीरे धीरे घटेंगे और सब चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और दिखती जाएंगी। बात ये है, ये एक बार करके देखने वाली बात है। बाकी जो दूसरी आप साइंटिफिक बातें पूछ रहे हैं कि कैसे होगा ये, इसके एक ही रास्ते नहीं है, कई रास्ते हैं, कई तरह से होगा ये, और कई मल्टीफेरियस बेनिफिट्स होते हैं, नॉट ओनली फॉर द आइज, फॉर द होल बॉडी, फॉर द वेल बीइंग ऑफ द पेशेंट। विटामिन डी, ये ऐसा आपने बताया, विटामिन डी पहली बात तो कई लोगों को नहीं पता होगा, विटामिन डी विटामिन नहीं है, हार्मोन है वो। विटामिन डी इज़ नॉट अ विटामिन, इट इज़ अ हार्मोन। ये भी जानकारी नहीं है मेरे लिए भी, और मुझे लगता है दर्शकों के लिए भी नहीं है। और ये नाम तो विटामिन रखा हुआ ना। हाँ, विटामिन एक्चुअली नॉलेज इवॉल्व करता रहता है धीरे धीरे। जब ये शुरू हुआ था तो विटामिन लग रहा था, लेकिन इसका इतना बड़ा रोल है बॉडी में जिससे सोचा नहीं जा सकता है। कैल्शियम की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर नहीं होती हैं, विटामिन डी की कमी से होती हैं। और विटामिन डी कैप्सूल में नहीं मिलता है प्लीज़, वो सूरज से मिलता है। कई बार दवा की कंपनियों को पूछने वाली बात है कि आपने सूरज के रेज को कैप्सूल में कैप्चर कर लिया क्या। ये सोचने जैसी बातें हैं, मतलब हम ये बड़ी सिंपल बातें हैं जो हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। तो ये बात है, तो आप एक बार करके देखें, 15 दिन तक करें। अगर आप पेपर पढ़ पाते हैं या आज चीज़ें ठीक से देख पाते हैं तो आप फील हो जाएंगे, चश्मा उतर जाएगा। उसके दो ही तरीके हैं चश्मा उतारने के, एक शॉर्टकट, एक लॉन्ग कट। शॉर्टकट ये है कि यूं पकड़े यूं उतार दिया, ये शॉर्टकट हो गया। लॉन्ग कट जो मैं आपको बोल रहा हूँ, 15 दिन तक करें, सूरज को देखें। जब आप देख रहे हैं उस समय चश्मा मत पहनिएगा, डायरेक्टली आपके और सूरज के बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। बताइए, जब हमने सूर्य को निहारना है, देखना है उनको, तो उस वक्त पहले हम आंखें धो लें, कुछ ऐसा प्रोसेस भी करना चाहिए ताकि सीधा जो है अपना लेंस जो है, आंखों का लेंस थोड़ा सा साफ हो जाए, कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। इसका आंसर मैं कभी भी कोई आंसर डायरेक्टली ये मतलब देना पसंद नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ एग्जाम्पल से, ताकि आप कभी ना भूलें।
एक बीज है जो पेड़ बन जाती है, तो जंगल में आप पानी देने जाते हैं कि नहीं, पेड़ में गंदगी लग गई है और पेड़ के पत्ते गंदे हो गए हैं, उसको पानी दिया जाए तो ज़्यादा ग्रीन हो जाएंगे। आपके गार्डन से ज़्यादा ग्रीन जंगल में होते हैं और ज़्यादा साफ़ होते हैं, तो उनको पानी कौन देता है? इसलिए जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं हेल्थ के लिए, इंटरनल फैक्टर्स को आप जगा लो, एक्सटर्नल फैक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका जो प्रश्न था कि आंखें धो के जाएं, आप कुछ भी करके ना जाएं, आप सिंपली जाएं और सूर्य देवता के सामने खड़े हो जाएं और उनको निहारना शुरू करें, क्योंकि ग्रेटफुलनेस आएगा उससे। क्योंकि अगर सूर्य ना हो तो लाइफ ऑन अर्थ इज नॉट पॉसिबल। एनी लाइफ, नॉट ओनली ह्यूमन लाइफ, एनी लाइफ इज नॉट पॉसिबल। तो ये सूरज के चलते ही है। हम मतलब जितने भी बेनिफिट्स उसके गिनाएं वो कम होंगे। शायद हम और इवॉल्व करेंगे और ज़्यादा नॉलेज ये लाएंगे, बट मोर और लेस ये है कि ये बहुत साइंटिफिक है, एंड इफ नीड बी वी कैन प्रूव इट साइंटिफिकली ऑल्सो। बात बताइए डॉक्टर साहब कि जो मैंने अभी तक पढ़ा वो ये है कि 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗਰਦਨ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕੇ ਹਿੱਸੇ ਕੇ ਬਲੱਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਡੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਹ ਵੀ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਨੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਪਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਹੋ ਜੇ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸੀ। सांस जब भी लें हमेशा लंबा लें, क्योंकि शैलो ब्रीदिंग को वो एसिड पैदा करता है, और डीप ब्रीदिंग को एल्कलाइन ब्रीदिंग कहते हैं, एल्कली पैदा करता है। और बॉडी पूरे सुबह से लेकर शाम तक एसिड को निकालने के चक्कर में रहती है। तो जब आप डीप ब्रीथ करते हैं तो वैसे भी अल्कलाइन ब्रीदिंग कर रहे हैं, एसिड कम कर रहे हैं अपना, और बॉडी को बहुत बेनिफिट दे रहे हैं। दूसरा ये था कि आप जो मर्जी, आपको जो भी करना है, जो एक्सरसाइजेज भी करना है, पेपर भी पढ़ना है, आप धूप में बैठ के क्यों ना पढ़ें, ताकि इनडायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ सन आपको मिलते रहें। आप देखिए, हम जिंदगी के इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि हमें नेचुरल चीज़ों से डर लगता है। गर्मी लग रही है, एसी ऑन करो क्योंकि पसीना आएगा, पसीने से डर लगता है हमें। बरसात हो रही, हाँ बरसात हो रही है, बाहर मत जाओ, भीग जाओगे, निमोनिया हो जाएगा। बरसात से डर लगता है हमें। हम कितना कमज़ोर हो गए हैं। बरसात एक बहुत रोमांटिक ये है यंगस्टर्स के लिए। उसमें घर में बैठा दिया आपने अपने आप को इतना मजबूत क्यों नहीं किया कि आप ये एंजॉय कर पाएँ? क्यों आपको निमोनिया हो जाता है? अपने आप को अंदर से मजबूत क्यों नहीं करते हैं? प्रॉब्लम ये है। बात बताइए कि क्या सिर्फ एक सूर्य को निहारने से, सूरज को देखने से, सूरज ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਹੋਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਨਕ ਆਪਾਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? दैट्स अ वेरी गुड ये क्वेश्चन, क्योंकि सिर्फ आंखें ही नहीं हैं, आईलिड्स भी हैं। कई लोगों के यहाँ पे बॉयल्स हो जाते हैं, कई लोगों को ये हो जाते हैं। कोई भी बीमारी का मतलब है वहाँ पर ब्लड सप्लाई बाधित है या ठीक से पहुँच नहीं रही है। बहुत सिंपल सी बात है। ब्लड सप्लाई नहीं है तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी। तो बेस्ट ये है कि सूरज को देखने के बाद ऐसे, जैसे बच्चे ऐसे रोते हैं, आप ठीक फॉलो करें उसको। इसीलिए बोलते हैं चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। अगर सीखना है कुछ तो बच्चों से सीखिए, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो अन्य मनस्क कर रहे हैं। मतलब डेलिबरेट नहीं है कि वो ऐसा हाँ, तो उनसे बहुत सीखने ऐसी बातें हैं। तो वो अगर आप करेंगे तो स्टाई नहीं होगा, ये नहीं होगा, ब्लड सप्लाई प्रॉपर रहेगी। मसल्स को आप अगर उसमें कुछ लग गया उसको आप डिसलॉज कर रहे हैं, ऐसे करके आँखों को साफ भी कर रहे हैं,
प्लस जो आँखों की फ्लूइड है चारों तरफ घूम रही है, ग्लॉकोमा नहीं होगा, कई चीज़ें हैं जो नहीं होंगी ये सिंपल सिंपल चीज़ें करने से। किसी एक पॉइंट को निहारने से कुछ इस तरह से भी कुछ और एक्सरसाइजेज भी हैं? उससे कंसंट्रेशन बढ़ता है। बेस्ट ये है कि अगर आपको मेडिटेशन करना है और ध्यान यहाँ वहाँ जा रहा है, तो मेडिटेशन करने का क्या मतलब है कि आप एक चीज़ पे कंसंट्रेट करें। तो अगर नहीं कर पा रहे हैं, सबसे सरल उपाय है एक मोमबत्ती जला लीजिए, उसके फ्लेम के टिप को 15 मिनट तक देखिए, क्योंकि आपका ध्यान ये कहीं नहीं जाएगा। इसीलिए लिखने के लिए बोला जाता है। जब आप लिखते हैं, कभी आपने नोटिस किया है, एक पॉइंट पे आके आपकी उंगलियां भी केंद्रित हैं, आपका दिमाग भी वहीं केंद्रित है, आपका पूरा शरीर वहीं पे केंद्रित है। सो यू आर इन वन लाइन विथ कॉन्सेंट्रेशन, एंड जब भी आप इस लाइन पे आते हैं तो कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी वहाँ पे आता है। इसीलिए जो पोइट्स हैं या राइटर्स हैं ऐसा कुछ लिख पाते हैं, बिकॉज पूरी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करके पेन के टिप पे ला देते हैं। तो ये तरीके हैं कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के। निगाह बढ़ाने के लिए क्या कुछ और भी तरीके, जैसे मुंह में पानी भर के आँख में मारना, कुछ ऐसे मैंने छोटे छोटे टिप्स हैं जो उसको बढ़ा सकते हैं वो टिप्स, और मैं उनसे एंटायरली डिसएग्री नहीं करता हूँ। बात ये है, बॉटम लाइन पे अगर आया जाए तो हम क्या करना चाह रहे हैं, चाहे मुंह में पानी भर लें, चाहे जो भी कर, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये जो मसल जो लेंस को खींच के रखे हैं उनको टाइट कर रहे हैं। उनको टाइट करने के जितने भी तरीके हैं वो कारगर होंगे। जैसे कोई एक पॉइंट को लेके आप यूं आप इसको गोल गोल घुमाते जाएं, वहाँ तक घुमाते जाएं जहाँ तक आपकी नज़र बिना सर ये घुमाए, आप अगर घुमा रहे हैं तो मसल्स को टाइट कर रहे हैं, तो निगाह ठीक होगी आपकी। कितने मिनट करना चाहिए? 15 मिनट ये काफ़ी है। 15 मिनट आप सूरज को देखें और 15 मिनट ये सब छोटी छोटी एक्सरसाइज कर लें, काफ़ी है। मतलब 15 मिनट 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो आपको रिजल्ट मिलेगा। यस, किसी को भी मिलेगा, करके देख लें। ये तो हो गया हम लोग एक्सरसाइज कैसे करते हैं, हमने सूरज को कैसे निहारना है। तो थोड़ा सा इसके साथ हमें ये भी बताना होगा कि कौन सी चीज़ें हैं जो बॉडी के अंदर जा रही हैं, इनटेक हो रहा है, उसकी वजह से हमारी निगाह खराब हो रही है, और कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इनटेक करनी है जिससे हमारी निगाह बढ़े। ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। हम जो भी ले रहे हैं वो टॉक्सिन्स हैं, हम रियल फूड तो ले ही नहीं रहे हैं। वैसे भी जिस फूड को आपने ये पका दिया वो डेड हो गया। आपने कभी गौर किया, हम सीड्स खाते हैं, चावल क्या है, दाल क्या है, रोटी क्या है? रोटी तो अगली फॉर्म नहीं, मतलब सीड ही है ना, बेसिकली सीड ही है, बिकॉज सीड हैज़ द पोटेंशियल एनर्जी टू बिकम अ ट्री। हमें ये पता है। तो जब पोटेंशियल एनर्जी है, आपने उसको, जैसे मान लीजिए दाल आपने बॉईल कर दिया, उसमें से निकाल के अगर आप ज़मीन में गाड़ देंगे तो पेड़ उग जाएगा। तो डेड फूड आपको लाइफ कहाँ से दे रहा है? मैं को अगर कोई साइंटिफिकली मुझे बता दे कि डेड फूड आपको लाइफ दे रहा है। लाइव फूड्स विल गिव यू लाइफ, डेड फूड्स विल गिव यू डेथ। लाइव फूड अगर हम कम भी खाते हैं तो भी अंदर जाके उसका फायदा होगा, लेकिन अगर डेड फूड ज़्यादा खाएंगे तो उसका उल्टा नुकसान होगा। बिल्कुल यही हो रहा है, यही हो रहा है। इसीलिए मैं पेशेंट्स को यूजुअली बड़ी सिंपल तरीके से बोलता हूँ, अगर ज़ुबान पे लगाम है तो 3 लोगों से वास्ता कभी नहीं पड़ेगा। ज़ुबान पे लगाम अगर खाने के लिए है तो डॉक्टर से वास्ता नहीं पड़ेगा, और अगर बोलने के लिए है तो पुलिस और वकील से वास्ता नहीं पड़ेगा, और इन तीनों से प्रोफेशनली ज़िंदगी में वास्ता ना ही पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। इज़ व्हाट आई फील। तो जाते जाते जो है वो ये 3 बातें तो हमने बता दी, लेकिन जिन लोगों को दवाइयाँ ले रहे हैं, जिन लोगों को ग्लूकोमा जैसे आपने बोल दिया, कैटरेक्ट बोल दिया, जैसे एक बीमारी वो भी है, अलग अलग बीमारियां हैं वो जो एक तो निगाह कम होता है, एक जो होता है अंदर की बीमारी होती है।
तो क्या इन बीमारियों से भी इसका छुटकारा मिल सकता है? ज़रूर हो सकता है, लेकिन वो है कि वो इंडिविजुअल केस बेसिस, केस टू केस बेसिस में वेरी करेगा। उसके लिए एक जनरल रूल नहीं हो सकता है। जैसे ये जनरल रूल है कि आप अगर सूरज को देखें, एक्सरसाइजेज करें तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये जनरल रूल है। लेकिन जैसे अगर ये किसी को बीमारियां हैं तो वो स्पेसिफिक रूल्स अप्लाई करेंगे, उस पेशेंट के लिए स्पेसिफिक होगा। वो ऐसा भी नहीं होता है कि वन साइज़ फिट्स ऑल, एक साइज़ है वो सबको फिट कर जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, तो वो है कि वो उसके लिए फ्लेक्सिबल करना पड़ता है। तो कई चीज़ें जनरल कैटेगरी में डाल सकते हैं, जो आपने स्पेसिफिक कैटेगरी, जैसे कैटरैक्ट है, जैसे ये है, जैसे मेरे फादर चश्मा नहीं पहनते हैं, 87 ईयर्स के हैं, तो वो ऐसे नहीं पहनते कि हमने अपनी लाइफस्टाइल वैसे रखी हुई है। जो ब्लड सप्लाई आप जो बोल रहे थे कम हो जाता है, हम पीठ के बल सोते ही नहीं हैं, हम पेट के बल सोते हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है। ना कॉग्निशन में कोई प्रॉब्लम आती है, ना कभी सोच में, ना कभी ऐसा लगता है कि मैं आज बहुत थक गया हूँ, मुझे सोना चाहिए, कभी नहीं, कभी लगा ही नहीं ऐसा। तो ये चीज़ें एनर्जी लेवल पे भी डिपेंड करती हैं, आपके विल पे भी डिपेंड करती हैं, और आपके आहार पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करती हैं। पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है। तो जाते जाते कोई टिप ऑफ द इंटरव्यू देना चाहेंगे आंखों के लिए खासकर? सूरज से प्रार्थना करिए टू टेक केयर ऑफ यू। आप उसी की औलाद हैं, और सूरज प्राणदायी हैं। प्राण मतलब एनर्जी, तो प्राणदायी एक ही सोर्स है हमारे पास, सूरज, और कोई सोर्स ही नहीं। तो अगर आप सूरज में जाएंगे और जो छोटे छोटे आई मूवमेंट के एक्सरसाइजेज हैं वो करेंगे, तो ये श्योर है कि चश्मे की ज़रूरत मिनिमाइज होते होते उतर जाएगी, ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी। तो एक चीज़ जो रह गई थी, ऑक्सीजन लेवल को ऊपर के हिस्से में बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन लेवल, ब्लड सप्लाई और वाटर सप्लाई, न्यूट्रिशन वाटर सप्लाई, इन तीनों को अगर बढ़ाएंगे तो यहाँ का हिस्सा जो है उसमें खराबी आने के चांसेस वो बहुत कम हो जाते हैं। अगर कोई खराबी आ भी गई है तो वो भी अपने आप हील होने लगती है, क्योंकि आपने बोला है कि कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसको बॉडी खुद हील ना कर सके। तो अगर तीन चीज़ें अगर सही से सप्लाई होती रहेंगी तो इनके बीमारी आने के चांसेस कम है, अगर है तो वो खत्म होती चली जाएगी। तो इन तीनों को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए तो जो वैल्सेल्वा मैनूवर है, वैल्सेल्वा मैनूवर मतलब सांस रोक लेना, तो लंबा सांस लेके, लंबा सांस रोक के, या यूं शंख बजाना जिसको बोलते हैं। कितनी देर तक रोक के रखना सांस? अंदर नाक के नहीं, अंदर सांस ले लिया, पूरा फुला ली छाती, और आपने फोर्स कर दिया उसको यहाँ वहाँ जाने के लिए। सिंगल सेल की मेम्ब्रेन तक पहुंचे। दूसरा, जो चक्रों का वो करते हैं, जो चक्रों का ये कुंडलिनी जागरण के लिए जो मंत्र यूज़ करते हैं, वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पे काम करता है। अगर कहीं ब्लॉकेज है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की, वहाँ पे खोलता भी है वो। बहुत से पेशेंट्स ऐसे ठीक हो जाते हैं जैसे लम वम, तो ये वाइब्रेशंस जो है ना, कई चीज़ें खोल देती हैं। और एक ही सांस में कई बार अगर कर लिया जाए तो ऐसा लगेगा कि अंदर में गिटार आ गया है, और जीने का स्वाद थोड़ा बढ़ जाता है। मैं आपको एक डेमो करके ये बताऊं। जैसे एक तो कुंडलिनी हमेशा स्पाइन को सीधा रख के करना चाहिए, कभी भी स्पाइन बिल्कुल सीधा होना चाहिए। यस, और सांस ये भर के एक ही सांस में मैं ये कोशिश करूँगा कि जितने भी चक्र हैं अपने, उसको छू लूँ। लम वम
रम यम हम एक ही सांस में आपने सभी चक्रों को छू लिया। तो आपने ये जो बीच बीच में आपने पेरिस्टाल्सिस कहते हैं इसको, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स ये किए, ये आपके सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को ऊपर ले जाने के लिए, नीचे ले जाने के लिए, ठीक से चलने के लिए बहुत कारगर होते हैं। और इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है आँखों पे भी। और ये तो बता दिया आपने, क्योंकि ऑक्सीजन पहुंचेगी तो ब्लड सप्लाई पहुंचेगा तो ऑक्सीजन भी पहुंचेगी, लेकिन न्यूट्रिशन वाटर वो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जो डिहाइड्रेट जो हो जाता है, ऊपर का हिस्सा डिहाइड्रेट हो जाता है, उसको कैसे ठीक किया जाता है? ब्लड में वो सारा कुछ है। दो ही चीज़ें हैं जो ब्रेन के अंदर जाती हैं, ब्लड और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के लिए मैंने अभी आपको बता दिया, और बाकी सभी चीज़ों का सप्लायर ब्लड है। चाहे वो हाइड्रेशन स्टेटस हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो फूड हो, ये सब ब्लड से आते हैं और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से भी आते हैं। तो ये दोनों चीज़ें अगर आप ठीक से मैनेज कर लें तो चीज़ें ठीक रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐनक जो है वो उतर जाएगी, बॉडी के अंदर के जो जितने विकार होंगे वो भी ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल उतर जाएगी। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये मुझे लगता है कि ये एक अपने आप में ये संजो के रखने के लिए, बचा के रखने के, इसको ये रिकॉर्ड में रखने के वाली जो है इंटरव्यू है, मेरे हिसाब से मैं तो इसको लेकर बहुत उत्साहित हूँ, क्योंकि मैं ये करने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਏ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਈ ਸੁਰ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਾ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਜੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਕਰ ਲਵੇ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।